Hello, everyone. Welcome to 7 Days 7 Super Stock Series. We are going to talk today a new stock that is the country's biggest insurer, Life Insurance Corporation of India. LIC has recently posted its Q2 profit, which fell by 3.8% as compared to the previous one. So there are mixed emotion in this, volatile market, and it's important for us to know what is going around. So let's get into the same. The LIC's profit for Q2 fell to 76.21 from its previous one, which is 79.25. When we talk about the income, that is the net premium income, it raised to 11.6%. Apart from that, when we talk about the net benefit which are paid by the insurer to the policy holder, the same increased by 17%. And this is how the pain is reflected here, wherein the LIC posted Q2 profits fall on higher benefits paid, but the margin expands. So there are two news again. When we see margin expense, yes, the net income is increased, but the payment with regard to the benefits has been also increased. So that's an outflow. When we talk about the solvency ratio of the company, the solvency ratio has been improved from 1.90 to 1.98. So it is a good news that the company is getting more stronger when it comes to its long-term sustainability and debt repayment obligation. Apart from that, when we talk about the new value of business, the net value of new business, basically it shows that the net premium income from the new business has jumped by 37.7% year on year basis, which is a fantastic number. Having said that, let's explore the fundamentals of the company on screener.in. So, on screener.in, you can find the market cap, that is the market value of the company as on date is 5,81,900 crores. When we talk about the book value of the share, it is 154. That is books में उस स्टॉक की वैल्यू 154 है, बट आज की तारीख में उस स्टॉक का भाव 920 रुपए के आसपास चल रहा है. When we compare the return on capital employed and return on equity, these are on the higher side. Now, for the sake of comparison, let's talk about the peers. When we compare this number with the peers in the industry, you will find that there is a huge variation. Yes, market capitalization एक रीजन है, बट जब हम कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, जितना कैपिटल इन्वेस्ट करा गया उस पे 72% का, मतलब 100 रुपए पे 72% का रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड. So which is highest among the peers. Similarly, when we talk about return on equity, which is 63%, again fantastically higher. And because of this, when the return on equity, return on capital employed is on the higher side, the company is having a high demand. However, when we talk about the PE, that is the price to earning ratio, it is around 14%, wherein the industry average is around 57, right? So it is 14 times as compared to 57 times. So definitely people are looking forward कि LIC का share का price कब range में आए और कब हम इसे अच्छे तरीके से buy करें, because the company seems to be financially stable when we talk about the solvency ratio. However, any decision can't be just take looking to these ratios or just few numbers. It's important to deep dive. और हम चलते हैं company के profit and loss count here. When we look to the profit and loss, the sales number, that is definitely यहाँ premium income company generate करती है. So it's basically in the service sector. The operating profit of the company, yes, as compared to last 2 years, 3 years, is on the higher side, 34,000 crores, 32,000 crores, and so on so far. However, ट्रेलिंग मार्जिन, ट्रेलिंग पीरियड हम देखते हैं तो उस केस में इट्स ऑन द लोअर साइड, बिकॉज व्हाट वी डिस्कस्ड दैट सिंस द नेट बेनिफिट्स पेड टू द पॉलिसी होल्डर्स हैज बीन इंक्रीज्ड, the same has been reduced. However, when we look to the profit before taxes, it is on the positive side, and the company is also good at paying dividend at times. So 25 to 15% का dividend almost company देती है. When we talk about the stock prices has been increased by 50% as compared to the last year. However, when we talk about the compounded profit growth, it's like 5 years, 73%, and 3 years, it is 140%. Balance sheet shows the position of assets and liabilities. The total liabilities of the company is equal to total assets as always. But interesting point to note here is the results of the company are increasing. So from March 2022 से 23 और 24 का नंबर आप देख सकते हैं कितना drastically jump हुआ है. Similarly, when we talk about the investments, the company is like somewhere
balancing the investments somewhere around these numbers always. When we talk about the cash flows of the company, three major activity, and we can see that cash flow from operating activity is positive for March 2023 as well as for March 2024. However, for March 2024, the number has been decreased substantially, almost by 50%. When we talk about the investments, again, the company has reduced its investment for the March 2024 because the operating profits were not so high as compared to the March 2023. But when we talk about other elements, it's crucial to observe here that the promoter holding, the promoter in the case of LIC is Government of India, is constant, which is 96%, almost, which is fixed, which shows the faith which the people have in this company, that is of LIC, because it's owned by Government of India, right? So this is about the complete comparison with regard to LIC. And now it's important and interesting to note that debt equity ratio is 0%. मतलब कंपनी की आज की तारीख में कोई फाइनेंशियल रिस्क या कोई फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है, कंपनी डेट फ्री है. But at the same point of time, there are certain cons because a company is like trading at high value as compared to the book value. So this is the complete fundamental analysis of the company, and let's get into the technical part. टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम कंपनी के स्टॉक के चार्ट पर जाएंगे. सो रेड और ग्रीन कैंडल कंपनी की डिमांड और सप्लाई के बारे में बताते हैं, कंपनी के स्टॉक के डिमांड और सप्लाई के बारे में बताते हैं. व्हेन आई लुक टू द क्वार्टर, तो क्वार्टर बेसिस पे हम देख पा रहे हैं कि कंपनी की स्टॉक की प्राइसेस पिछले 1 2 3 4 क्वार्टर से सरक सरक के बढ़ रही, बहुत स्लगलिश तरीके से बढ़ रही है, और रिसेंट लास्ट क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट डाउनफॉल आ गया, बिकॉज उसका हम रेड कैंडल देख सकते हैं. कंपनी के मंथली अगर हम नंबर्स को देखें तो मंथली नंबर्स में दिखता है कि लास्ट 4 मंथ्स से कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में हर महीना गिरावट गिरावट और गिरावट आ रही है. और ये गिरावट किस तरह से कितनी बनी है, लेट्स हैव अ लुक. तो हम इसको मेजर करते हैं राइट नाउ विद द मेजर टूल. कंपनी के स्टॉक प्राइसेस लास्ट 4 महीने से कुछ इस तरह से गिरते हुए नीचे आए, मतलब ऑलमोस्ट 19 to 20% का करेक्शन यहाँ पे हुआ है. अगर आप ऑल टाइम हाई से लेंगे तो करीब 25% तक का करेक्शन आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे इस कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में. अब जब 20 to 25% का करेक्शन हम देख रहे हैं, तो उस केस में हमारे लिए क्या थॉट प्रोसेस या क्या एक्शन होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर. तो मंथली बेसिस पे हम देखें तो लास्ट 4 मंथ से प्राइस डाउन आ रही है, मतलब ये कुछ 20% सस्ता मिल रहा है आज की तारीख में. बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मंथली बेसिस पे हम यहाँ देखेंगे कि इसका डिमांड कहाँ बन रहा है. तो पहले हम क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं. क्वार्टर बेसिस पे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई हुआ है, मतलब लेग इन बेस और लेग आउट है, यहाँ डिमांड जोन आइडेंटिफाई हुआ है क्वार्टर बेसिस पे, मतलब अराउंड आप समझिए कि 690 के आसपास यहाँ इसकी डिमांड आके बैठी हुई है. अब हम बात करें मंथ बेसिस पे क्या स्टेटस है, तो मंथ बेसिस पे हम बोलेंगे कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक की प्राइसेस डाउन आ रही है. तो इसको हम रेड में मार्क कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का स्टॉक सप्लाई जोन से नीचे की ओर आ रहा है, और ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टेड है. अब प्राइस ऑलमोस्ट बीच में है अपनी डिमांड और सप्लाई के आज की तारीख में. बट मंथली लेवल पे आपको कहाँ लगती है कि डिमांड है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लेगिन का कंपोनेंट मिसिंग है. बट हाँ, ये बिना लेगिन वाला कंपोनेंट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्किंग मंथली बेसिस पे हम इस लेवल पे हम डिमांड देख सकते हैं. तो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम और मंथली का टाइम फ्रेम डिमांड जोन का कोइंसाइड कर रहा है. वीकली बेसिस पे देखें तो भाई वाह क्या पिक्चर बनी है. ओह सॉरी, वीकली बेसिस पे हम देखें तो लास्ट वीक में कंपनी ने एक सप्लाई जोन यहाँ फॉर्म किया, जहां पर एक लेग इन, 2 बेस और एक लेग आउट बने. एक सप्लाई जोन यहाँ बना और कंपनी का प्राइस यहाँ पर थकते 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 नीचे आ ही रहा है, मतलब कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस में एक डाउन ट्रेंड तो दिख ही रहा है हमें. बट अगर हम इसका सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो ग्रीन सिंपल मूविंग एवरेज 45 डिग्री पे कट करने के बाद में ट्रेंड अप बता रहा है. ठीक है, इज इट राइट टाइम टू एंटर? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज कंपनी का स्टॉक अभी भी गिरने की पूरी ख्वाहिश में है. वो मंथली सप्लाई जोन से नीचे आता हुआ आज करीब इक्विलिब्रियम में ट्रेड कर रहा है. नियरेस्ट डिमांड जोन अगर हम कहें वीकली लेवल पे तो यहाँ बैठता है, मतलब 850 के लेवल पर डिमांड आ सकती है. वापस इसमें पुल बैक आने का चांसेस है 860 के लेवल पर आने के बाद होगा. तो ये बात क्लियर है कि कंपनी का स्टॉक यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना के आया,
फिर दूसरा सप्लाई जोन बनाया और ये वाला जो डिमांड जोन था वो रिस्पेक्ट हुआ, उसको रोक नहीं पाया। वापस सप्लाई जोन बने और यहाँ पर प्राइस आके यहाँ पे बैठी। 917 का लेवल भी ब्रीच हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, मतलब यहाँ से भी पिकअप हो चुके हैं ऑर्डर्स। अब नया आता है, हम कहें कि कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है या प्राइस कहाँ से वापस ऊपर जा सकती है। तो इसकी गुंजाइश कुछ अराउंड 846 के लेवल के आसपास है। अगर ये लेवल भी वीकली पे टूट गया तो देर आर वापस चांसेस कि वहां से हमारी प्राइस और नीचे आ जाए। तो ये आपका एक वीकली बेसिस पे एक डिमांड जोन बन रहा है अराउंड 850 से 821 के बीच में, राइट। और उसके बाद में इनिशियली हम देखें कि सबसे ज्यादा जो कोइंसाइडिंग है वो 684 के लेवल के आसपास का वीकली डिमांड जोन बनता है। बट हम डेली बेसिस पे एग्जीक्यूशन देखते हैं, तो वी गो ऑन डेली बेसिस, और डेली बेसिस पे कुछ ये पिक्चर है। और अब सारी चीजें क्लियर होने वाली है हमें फटाफट से। आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर प्राइस एक बार चलने की कोशिश कर चुकी थी ये वाले जोन पर, और इसके बाद में डिमांड कहाँ बनती है, तो यहाँ कुछ डिमांड बनती है डेली बेसिस पे 798 के लेवल पे एंट्री ली जा सकती है। बट वो भी एग्रेसिव एंट्री होगी क्योंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आगे बढ़ी हुई है। मतलब अगर हम कहें कि और सेफर लेवल कहाँ मिल सकता है, तो 731 के लेवल पे मिल सकता है, कि 731 तक आते आते प्राइस ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन आ जाएगा। तो उस केस में हो सकता है आपका ट्रेंड उस समय डाउन हो जाए। तो आज की तारीख में हम कहते हैं ये काफी नीचे का लेवल है और डाउन ट्रेंड हो सकता है उस केस में। तो क्या अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो वापस उस समय हमें चार्ट ओपन करके देखना होगा, अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो। मतलब 927 के लेवल में आज की तारीख में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं बनती है, बिकॉज प्राइस अपने मंथली सप्लाई जोन से नीचे की ओर आ रही है। जब बड़े टाइम फ्रेम का प्रेशर होता है तो डेली या वीकली का डिमांड जोन उसे रोक पाए ये थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सप्लाई। तो आज हम देखें कि यहाँ पर डिमांड बनता है इसका 732 लेवल के हिसाब से। अगर हम सीखने के हिसाब से स्टॉक को मार्क करें तो मान लीजिए अगर ठीक है कि 800 के आसपास ये स्टॉक है आज की तारीख में, तो इस केस में मेरा एंट्री यहाँ मार्क हो जाएगा। इसके बाद में मुझे मेरा स्टॉप लॉस मार्क करना होगा और मुझे अपना टारगेट 1:2 आराम से मैं यहाँ सेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई। बट कोई कहता है कि नहीं हमें मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, तो आपको 636 तक के लेवल का वेट करना होगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस LIC इंडिया का। तो ये क्लियर है फंडामेंटल्स को देखते हुए कि कंपनी काफी स्ट्रांग है when it comes to its revenue, when it comes to its growth prospects, solvency, new business, new premium related to year on year basis, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। बट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है स्टॉक अभी इक्विलिब्रियम में है, हमें वेट करना चाहिए और जल्दी नहीं करनी चाहिए बाइंग की, बिकॉज फ्यूचर करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट में इस स्टॉक को लेकर। सो stay tuned in for more information, for more analysis. Looking forward to connect with you for another interesting analysis in the another video.